Good evening, brothers and sisters. भाइयों और बहनों आपको गुड इवनिंग। It is a great blessing if we can understand fully the true value of God's word. ये एक बहुत बड़ी आशीष है अगर हम परमेश्वर के वचन की सही मूल्य को पहचाने तो। So it is in my heart to share something in those lines. और इन्हीं बातों के विषय में आज कुछ मैं बांटना चाहता हूँ। Whatever I am going to share today is not a just theory, it is all something which touched my heart, which benefited me all through these years. आज मैं जो कुछ बांटूंगा वो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये सब मेरे जीवन में बहुत ही लाभदायक रहा है इतने सालों से। In Psalm 19, verse 10, भजन संहिता 19 उसके 10वें वचन में David is describing his understanding about God's commandments. परमेश्वर के आज्ञाओं के विषय में दाऊद की जो समझ है दाऊद बता रहा है। He is in they are desirable than gold, yes, than much fine gold. और दाऊद कहता है वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। So I think during David's time, the costliest thing he could imagine is gold during the world of his time. और मैं समझता हूँ जब दाऊद संसार में था उस समय सबसे महंगी चीज जिसके बारे में दाऊद सोच पाया वो सोना थी। So he could relate God's word to the value of gold. और इसलिए वो परमेश्वर के वचन के मूल्य को सोने के मूल्य से उसकी वो तुलना कर सका। That is why he said they are more desirable than gold, and not even they are much desirable than fine gold, refined gold. और इसलिए दाऊद कहता है कि सोने से भी ज्यादा मनोहर परमेश्वर का वचन है, उतना ही नहीं ताया हुआ जो सोना होता है उससे भी बढ़कर वो मनोहर है। The most important thing he told, which touched my heart, is he's saying, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने बताई जिसने मेरे हृदय को छुई वो ये है कि वो कहता है वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। So, honey is said to be the sweetest thing. और ऐसा कहा जाता है कि शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है। And I heard the honey dripping on the honeycomb. There is nothing more sweeter and tastier than that. My honey, fresh honey dripping from the honeycomb. और मैंने सुना है जो छत्ते से ताजा ताजा टपकने वाला शहद होता है वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा होता है। So he is again comparing God's word to that sweeter than also honey and the drippings of the honeycomb. और फिर एक बार वो परमेश्वर के वचन की तुलना शहद से और छत्ते से टपकने वाले शहद से करता है। So David is somebody who delighted and he enjoyed God's word. और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर के वचन से आनंद आता था और उसी में वो मगन होता था। Because he understood the preciousness of God's word. क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के जो मूल्य है उसको समझ लिया। Some years back, when I was young, a passage from the scripture used to challenge me. कुछ सालों के पहले जब मैं जवान था परमेश्वर के वचन से एक वचन था जो मुझे बहुत चुनौती देता था। That is from Joshua chapter 1, verses 7 and 8. वो है यहोशुआ का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका वचन 7 और 8। So here, God is encouraging and motivating and challenging Joshua. और यहाँ परमेश्वर यहोशू को प्रोत्साहित कर रहा है और चुनौती दे रहा है। The situation is Moses had died and Joshua had to take the leadership of Israel. परिस्थिति ये थी कि मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और यहोशू को इस्राएल की बागडोर संभालनी थी। As a much younger person, that responsibility fell upon him. वो बहुत जवान था और ये पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आई। And God is encouraging him, promising his presence in his life. और परमेश्वर उसको प्रोत्साहित कर रहा है और अपनी उपस्थिति उसके साथ होगी ये उसको वायदा कर रहा है। So in verse 7, Joshua once and one thing he said is, be careful to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you.
और 7वें वचन में परमेश्वर उससे कहता है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। Those time Moses law mean that is a written God's word, God's commandments. और उस समय मूसा ने दिया हुआ व्यवस्था मतलब परमेश्वर का दिया हुआ वचन। So God is encouraging, be careful to do it. Don't be casual about it. और परमेश्वर उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि तू चौकस रहकर उस सबको पूरा करना, ऐसे ही उसको हल्के में मत लेना। Yeah, be diligent when it comes to God's word. और बहुत ही जिम्मेदारी से सोच समझ के परमेश्वर के वचन यत्न करना। And he's saying, do not turn from it to the right or to the left. और वहां लिखा है कि उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। You should not be an extremist. तुझे एक ही चरम पंथी पर किसी चीज को नहीं लेकर जाना है। You should not take it stretch to either right side or to left side. या तो दाहिनी ओर या बाई ओर तुझे उसको खींच कर नहीं रखना है। Remain within the boundary of God's word. परमेश्वर के वचन की सीमाओं के अंदर ही रहना है। Don't make it very extreme, beyond, be overzealous and extreme beyond what God has meant on one और side. इतने उत्साह के साथ जाकर जो परमेश्वर की का अर्थ था उससे बाहर जाकर कुछ नहीं कहना। And on the other hand, lighten it. It's okay. Small thing, God doesn't care. Don't be that also. और दूसरे हाथ पर उसको छोटा भी मत करना कि अरे ये तो कोई इतना जरूरी नहीं है। Take the middle path. Be in the center of God's word. पर बीच का रास्ता लेना, परमेश्वर के वचन के बीच में रहना। So what touched my heart that time is the God is saying that then you may have good success wherever you go. और जो मेरे वचन मेरे हृदय को छू लिया वो ये था कि वहां परमेश्वर कहता है कि फिर जहां जहां तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तुझे सफलता हासिल होगी। So as a young man, those days, this is what I thought. When I go to a bookshop, I can find many books about success. और उस समय मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं कोई पुस्तक खरीदने की जगह जाऊं तो मुझे सफल कैसे होना है इस पर कई पुस्तक मिल सकते हैं। There are 3 points and 7 points and 10 points for success. और सफलता हासिल करने के कोई 3 मार्ग बता सकता है या कोई 5 या कोई 10 बता सकता है। But I understood the actual success comes on our way when we are diligent about God's word. पर मैंने समझा कि वास्तविक सफलता हमें तभी हासिल होती है जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में बड़े यत्न करते हैं। When I say success, it doesn't mean that just making money or being somebody great person on earth. जब मैं सफलता कहता हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं और इस पृथ्वी पर कोई महान व्यक्ति बनते हैं। To me, success means fulfilling all that God has planned about me. I don't want to miss a single thing. मेरे लिए सफलता का अर्थ ये है, परमेश्वर मेरे लिए जो कुछ चाहता है वो सब कुछ मैं पूरा करता हूँ, उसमें से एक भी छूट नहीं जाता। I don't want a regret letter. मुझे बाद में जाकर किसी भी बात का पछतावा या खेद नहीं चाहिए। That is true success. वो है सही सफलता। Fulfilling all of God's purposes concern each one of us. That is real success. परमेश्वर का हम सबों के लिए जो उद्देश्य है उसको पूरा करना वही सही सफलता है। And in verse 8, he continues to say, this book of the law shall not depart from your mouth. और 8वें वचन में वो आगे जाकर कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। Meaning we can proclaim and declare God's promises, God's commandments, and the hope that comes out of God's word. इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को कबूल कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं और जो आशा हमें उसमें से मिलती है उसका भी हम दावा कर सकते हैं। So there is a place for God's word in our mouth. और परमेश्वर का वचन का हमारे मुंह के अंदर भी एक जगह है। And then he says that you shall meditate in it day and night. और फिर लिखा है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। Meaning, after it is not that we should not be just satisfied by reading a passage or a chapter in the morning. इसका मतलब हम सिर्फ सुबह को एक भाग पढ़ते हैं या एक अध्याय पढ़ते हैं, उसी से हमें संतुष्ट नहीं होना है। All through the day, we can try to think and reflect on it for applying what we learned in the
daily life. दिन भर हम उसके बारे में सोच सकते हैं और मनन कर सकते हैं कि कैसे हम उसको हमारे दिन के जीवन में लागू कर सकते हैं। So that you may be careful to do according to all that is written in it. इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने को तू चौकसी कर। Even then, that verse is concluding, then you will make your way prosperous and then you will have success. और इस वचन का अंत भी वैसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। So this is something very much encouraged me and motivated me to genuinely love God's word and find delight in obeying God's ways. और इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि मैं सचमुच परमेश्वर के वचन में आनंदित रहूं, मगन रहूं और उसके आज्ञाओं को मानने में तत्पर रहूं। Then that will bring true success in our life. वो हमारे जीवन में सच्ची सफलता लाएगा। It's almost like what Jesus said in Matthew chapter 6:33. और ये बिल्कुल उसी के जैसा है जो यीशु मसीह ने मत्ती 6 उसके 33 में कहा। Seek you first the kingdom of God, and all these things will be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Coming to Psalm 1, भजन 1 की तरफ हम मुड़ेंगे। there is a similar passage there as well. वहां भी ऐसा ही एक वचन है। He speaks about a blessed man. यहाँ एक धन्य पुरुष या आशीषित पुरुष के बारे में लिखा है। In verse 2, his delight is in the law of God. दूसरे वचन में कहा है कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। So we understand from this, God's word is not a boring thing. इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कोई बोरिंग चीज नहीं है। Bible is not a boring book. बाइबल एक ऐसी पुस्तक नहीं है जो बहुत बोर होती, जिसको पढ़कर हम बोर होते हैं। Yes, and but we can find delight in God's word. पर हम परमेश्वर के वचन में आनंद ढूंढ सकते हैं, प्रसन्नता ढूंढ सकते हैं। And here also it says, and in his law he meditates day and night. और यहाँ भी लिखा है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। And such a person, how he is that is described in verse 3, he will be like a tree firmly planted by the streams of water. और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है उसका वर्णन तीसरे वचन में हम देखते हैं। वो एक वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है Which yields his fruit in its season, और अपनी ऋतु में फलता है and his leaf does not wither. और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। And here it comes. Whatever he does, he prospers. और यहाँ भी लिखा है इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। It's up to us to believe and claim these promises if you find delight in God's word. और ये हम पर है कि हम इस पर विश्वास करें और इस पर दावा करें, अगर हम परमेश्वर के वचन में आनंद करते होंगे तो। Whatever he does, such a person, he prospers. ये व्यक्ति जो कुछ करता है वो सफल होता है। I remember one sister who, when she married, she did not know cooking. मुझे याद है एक ऐसी बहन थी, जब उसका विवाह हुआ तो वो खाना पकाना नहीं जानती थी। So the responsibility of cooking fell on her after her wedding. और शादी करने के बाद खाना पकाने की जिम्मेदारी उस पर गिरी। And she used to pray, trust. She was a godly sister, but she was in the hostel all her life, and that's why she didn't know cooking. और वो प्रार्थना करने लगी। वो एक ईश्वरीय बहन थी, पर वो जिंदगी भर एक हॉस्टल में पली बड़ी थी, इसलिए उसको खाना पकाना नहीं आता था। So I remember she was testifying. She used to pray and start cooking, and invariably her dishes will be so delicious. और मुझे याद है कि एक बार वो गवाही दे रही थी कि वो खाना पकाने से पहले प्रार्थना करके शुरू करती थी और जो कुछ वो बनाती थी वो बहुत स्वादिष्ट बनता था। So whatever we do can prosper if we are really delighting in God's word and willing to obey God's ways. और हम जो कुछ करेंगे उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी, अगर हम परमेश्वर के वचन में मगन रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो। There's a very practical thing written in Ezra chapter 7, verse 10. और इज़रा की पुस्तक उसके 7वां अध्याय और 10वें वचन में एक बहुत ही व्यावहारिक बात लिखी है। He is written Ezra.
इज़रा उसका 7 और 10वां वचन। Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach his commandments and ordinances in Israel. क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। So Ezra's heart, he set on uh, three areas in related to God's word. और परमेश्वर के वचन के संबंध में 3 क्षेत्रों के बारे में इज़रा ने अपने मन को लगाया था। He was not lazy in the matter of studying God's word. परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करने के विषय में इज़रा लेज़ी नहीं था। He said that he set his heart और यहाँ लिखा है कि उसने अपना मन लगाया। first to study the law of God. सबसे पहले तो उसका अर्थ जान लेने या उसका पढ़ने के लिए, He studied God's word with great interest. और उसने बहुत दिलचस्पी के साथ परमेश्वर के वचन का अभ्यास किया। And we know he was not studying to preach to somebody else. और हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को इसलिए नहीं पढ़ रहा था ताकि वो दूसरों को जाकर प्रचार करे। Yeah, he was not studying to find some scripture to preach to his wife. वो इसलिए नहीं पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन को ताकि वो एक कोई उसको वचन मिलेगा और वो अपने बीवी के साथ उसको बांटेगा। Why did he set his heart to study God's law? क्यों उसने अपना मन लगाया कि वो परमेश्वर के वचन का अर्थ समझ ले। To practice it. That is written there. यहाँ लिखा है कि उसके अनुसार चलने के लिए। He wanted to understand God's word with a great interest so that he could practice it. He could put it in his life. वो बहुत दिलचस्पी से परमेश्वर के वचन का अर्थ समझने में लग गया क्योंकि वो उसको अपने जीवन में उसके अनुसार चलना चाहता था। And having done that, he also understood, oh, this will help. I understood God's word and I am now practicing it. I understand the benefit. It will definitely bless others also. Then he started teaching others also. और एक बार उसने उस वचन को समझकर अपने जीवन में लागू किया, फिर उसको समझा कि अब मैं इसको समझ गया हूँ और अब इसको लागू कर रहा हूँ, तो इसको बांटने से दूसरों की भी सहायता होगी। So this is God's sequence of teaching to others. और दूसरों को सिखाने के विषय में परमेश्वर का यही क्रम है। First, we study ourselves with great interest for our प- own practicing. पहले तो हम अपने आप के जीवन में लागू करने के लिए बहुत दिलचस्पी से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। And when we find it so useful, so blessing, how can I stop sharing with others? In that spirit, teach others. और फिर जब हम उसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी पाते हैं, लाभदायक पाते हैं, तो फिर हम कैसे दूसरों से बाँटने से रोक सकते हैं? उस आत्मा में हम उस वचन को बाँटते हैं। So between studying God's law and teaching others, we should not miss practicing it. और परमेश्वर के वचन को पढ़ाई करने में और उसको दूसरों को सिखाने के बीच का मार्ग है, उसको हमें भूलना नहीं है कि हमको उसे लागू करना है। So I think this is a very key verse for all of us to put into our own life. Set our heart to study God's law in order to practice it ourselves, and then our teaching others should flow out of it. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है जिस पर हम हमें गौर करना चाहिए कि हम अपने मन को लगाएं ताकि हम परमेश्वर के वचन का अर्थ समझ ले, ताकि हम उसको लागू करें और फिर दूसरों को सिखाएं। Another verse which helped me tremendously during my younger days is Colossians chapter 3 verse 16. एक दूसरा वचन जिसने मुझे मेरे जवान दिनों में बहुत ज्यादा उपयोगी मेरे लिए रहा, वो है कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 16 वचन। Let the word of Christ richly dwell within you. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। So that you really challenge my life. Word of God should not be meagerly like we take medicine little bit. That is not how the word of God should dwell in us. और इस वचन ने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दिया कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में बहुत ही छोटी मात्रा में, जैसे हम कोई दवाई लेते हैं उस प्रकार से हमारे मन में ये नहीं बसना चाहिए। There should be a richness of God's word in our life. एक उसके बारे में बहुत एक अधिकाई से हमारे जीवन में ये बसना चाहिए। What whenever I read this I comes to my mind the battery in the car. और जब कभी मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो कार में जो बैटरी होती है वो मुझे याद आता है।
When the battery is fully charged, in the first turning of the car will start. जब बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होती है, तब पहले ही हम गाड़ी को चालू करते ही वो चालू हो जाती है। In a way, that is how we should be charged, fully charged with the God's word in our life. और एक इस हिसाब से अगर हम कहें, तो इस प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से पूरी तरीके से चार्ज रहना है। Word of God should dwell in us richly, not sparingly. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भरपूरी से बसना चाहिए, थोड़े मात्रा में नहीं। 2 Timothy chapter 3, दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 15 and 16, उसका 15 और 16 वचन, he says that the sacred writings which are able to give you wisdom that leads to salvation through faith in Jesus Christ. और यहाँ पवित्र शास्त्र के विषय में लिखा है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। Yeah, so Word of God gives us wisdom that leads to salvation. और परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, जो जिससे हमें उद्धार प्राप्त होता है। If you sense the need of wisdom in our life, go to the Word of God. अगर हमारे जीवन में हमें बुद्धिमानी की जरूरत महसूस होती है, तो हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाना है। In another place is written that the Bible, the Word of God, can make us wiser than our teachers. और एक दूसरे जगह में ये लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें हमारे शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान बना सकता है। I've seen in my own life, sometimes in workplaces, secular places, uh, God can give me wisdom far more than people who are above us. और मैंने ये खुद मेरे जीवन में देखा है, जहाँ हम काम करते हैं, हमारे काम के जगह कई बार परमेश्वर इस प्रकार की बुद्धि देता है, जो बाकियों से, मेरे ऊपर के अधिकारियों से भी बेहतर होती है। Others may have knowledge, but God can give us wisdom. औरों के पास ज्ञान हो सकता है, पर परमेश्वर हमें बुद्धि या समझ दे सकता है। And verse 3:16 is a very important scripture verse which say why God, word of God is important. और दूसरा तिमोथी 3:16 ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, ये समझने के लिए क्यों परमेश्वर का वचन जरूरी है। It says that scripture is inspired by God. क्योंकि यहाँ लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। The Bible is not just like any other printed book. और इसलिए बाइबल किसी और छपी हुई पुस्तक के समान नहीं है। Bible is important not because it is a golden gilt, etc. और परमेश्वर का वचन इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसके जो पन्ने होते हैं उसको वो सुनहरे होते हैं। It is important because God has inspired the scriptures. वो महत्वपूर्ण या जरूरी इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, परमेश्वर का वचन। In other words, He has breathed His life behind the thoughts in the scriptures. दूसरे शब्दों में कहे तो जो परमेश्वर के वचन में जो विचार है, उसके पीछे परमेश्वर ने खुद प्रेरणा दी है। So God's heart, God's thinking is behind the scriptures. और परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर ने सोचकर हमें ये पवित्र शास्त्र दिया है। So that is whenever we read a scripture, we can always think why God has written that. What was God in God's heart when we wrote this scripture? और इसलिए जब कभी हम किसी वचन को पढ़ते हैं, हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ये लिखा है, परमेश्वर के हृदय में क्या था जब उसने ये लिखा। It is a good way to understand God's thoughts behind a scripture passage. और, और किसी भी शास्त्र भाग के पीछे परमेश्वर की क्या सोच हो सकती है, ये समझना एक अच्छी बात है। And there it says that scripture is profitable for teaching, for reproof, and for correction. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन उपदेश करने, समझाने के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है। And it is good for training in righteousness. और धार्मिकता की शिक्षा के लिए भी वो लाभदायक है। And it will all lead to a man of God adequate and equipped for every good work. और इसको पढ़कर एक परमेश्वर का जन सिद्ध बनेगा और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएगा। There's a verse in Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानियों उसके 4:12 में एक वचन है, Word of God is living and active.
परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और सक्रिय है। So, word of God is not a dead, inactive और thing. परमेश्वर का वचन कोई मरी हुई या जिसमें जीवन नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। It is living and active. वो जीवित है और वो क्रियाशील है। Sometimes I think, some very familiar passage, such as uh, Psalm 23. I knew Psalm 23 from my Sunday school times. I had by heart. और कई बार मैं सोचता हूँ ऐसे वचन जो बहुत ही ज्यादा परिचित है, जैसे भजन संहिता 23, मैं अपने संडे स्कूल में था, तब से मैंने उसको याद करके रखा था। But now the same scripture can bring a new light to me पर वही वचन जो मुझे परिचित है, वो वही वचन मेरे लिए एक नई ज्योति या नया प्रकाश लाता है in our life situations. हमारे जीवन की परिस्थितियों के बीच में। So word of God is living and it is active, और परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है। and it is also sharper than two-edged sword. और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। Two-edged sword means it is not for me to cut others. दोधारी तलवार का अर्थ यह है कि वो इसलिए नहीं है ताकि मैं दूसरों को उससे काटूं। First, I should receive the cut myself. Then only I can use it to others. सबसे पहले मैं अगर उस तलवार से कटता हूँ, फिर ही मैं उसको दूसरों पर उपयोग कर सकता हूँ। And it is piercing as far as the division of soul and spirit. और प्राण और आत्मा को अलग अलग करके आर पार वो छेदती है। So it is the word of God which separates spirit and soul. और ये परमेश्वर का वचन है जो प्राण और आत्मा को अलग करता है। So we should not, God wants us not to live in our soul level. God wants us to change our life at the spirit level. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ प्राण के स्तर पर जिए, परमेश्वर हमारे जीवन को एक आत्मिक स्तर पर बदलना चाहता है। God wants to separate all that is soulish from us and make us truly spiritual. And the word of God do that work. और हमारे जीवन में जो कुछ प्राण से संबंधित है, उससे परमेश्वर हमको अलग करना चाहता है और आत्मिक बनाना चाहता है, और ये परमेश्वर का वचन करता है। And word of God is able to judge the thoughts and intentions of the heart. और परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। We very often we speak in the church that God always look at our inside. और कई बार हम कलीसिया में कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे भीतर देखता है। Man looks at the outside, but God looks at the inside. मनुष्य हमेशा बाहर देखता है, पर परमेश्वर भीतर देखता है। So inside that thoughts, intentions, and motives of the heart, that is what God is interested. और अंदर जो हमारे विचार, इरादे और उद्देश्य होते हैं, उसमें परमेश्वर ज्यादा दिलचस्पी रखता है। And it is word of God which transform us to that level. और ये परमेश्वर का वचन है जो हमें उस स्तर पर बदल सकता है। As God is so much interested in our inside level, we also should be so passionate about our inside life. जब परमेश्वर खुद हमारे भीतर जीवन के बारे में इतनी दिलचस्पी रखता है, तो हमें भी उसी के बारे में एक दिलचस्प इच्छा होनी चाहिए। 1 Peter chapter 2 verse 2, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन। it is like a newborn babies long for the pure milk of the word, so that you may grow in respect of salvation. और यहाँ लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। A newborn baby craves for pure milk. एक नया जन्मा हुआ बच्चा जो है, वो दूध की लालसा रखता है। Now that is how God wants our desire also. उस प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हमारी इच्छा भी हो। And the newborn baby initially just have milk, nothing else. और एक बच्चा जब जन्मता है, वो शुरुआत में सिर्फ दूध ही पीता है, दूसरा कुछ नहीं। So our spiritual growth, as written there, happen only to the extent we are interested in God's word. और हमारा आत्मिक विकास ये उतनी ही मात्रा में होगा जिस मात्रा में हम परमेश्वर के वचन में दिलचस्पी रखेंगे। Otherwise, we can be just superficial. अगर ऐसा नहीं तो हम सिर्फ सतह पर होने वाले या बनावटी होंगे।
We can find some little bit of comfort here and there. हम यहाँ वहाँ थोड़े से सांत्वन को प्राप्त करेंगे। We can just be happy with our forgiveness of sins, हम हमारे पापों के माफी की वजह से ही खुश होंगे with no interest in growth in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति या विकास में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। Sadly, this happens to many Christian believers. और ये दुख की बात है कि कई मसीहों के साथ, विश्वासियों के साथ यही होता है। You are so happy with the with the kind of assurance that they will just scrape through to heaven. और उनके अंदर ये जो आश्वासन है कि वो किसी ना किसी प्रकार से स्वर्ग में जाएंगे, उसी के साथ वो बहुत खुश होते हैं। With no desire to grow and with no desire to fulfill all of God's plans for their life. और उनके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए उनके बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती और परमेश्वर की जो उनके जीवन में उद्देश्य या योजना है, उसको पूरी करने की भी उनकी इच्छा नहीं होती। So that can lead to tremendous regret later. और अगर ऐसा हुआ तो आगे जाके इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पछतावा हमें होगा। When we meet the Lord and we feel regret, Lord, all my earthly life I just wasted. How can I express my thanks to you? जब हम प्रभु को सामने मिलेंगे तो हमें ये बहुत बड़ा पछतावा होगा कि प्रभु, मैंने अपना सांसारिक जीवन, इस पृथ्वी का जीवन तो व्यर्थ कर दिया। मैं कैसे तेरे प्रति अपने धन्यवाद को प्रकट करूं? Then it's too late. पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। I want to share some thoughts. Bible often uses the word, as we read already, about meditation. और मैं कुछ बांटना चाहता हूं, जो वचन, एक शब्द बाइबल में लिखा है मनन, उसके विषय में। So this word we often hear in our, especially those of us who are in India. और हम जो इंडिया में है, भारत में है, बहुत बार इस शब्द को सुनते हैं, मनन करना या ध्यान करना। But the meaning of scriptural meditation is not the same as that the word meditation that we are used to. पर परमेश्वर के वचन में जो मनन के विषय में लिखा है और जिस अर्थ से हम मनन इस शब्द को सुनते हैं, ये दोनों अलग है। It has altogether a different meaning, in fact. उसका एक पूरी तरीके से अलग अर्थ है। There is nothing mystic about scripture meditation. ध्यान करने के बारे में कुछ भी ऐसा जादुई जैसा कुछ नहीं है। It is not meant to be a ritual or sitting in one place and chanting. और परमेश्वर की वचन पर ध्यान करना ये कोई रिवाज नहीं है कि हम एक जगह रहकर उसको बार बार कोई शब्दों को दोहराते हैं। Meditating on the scripture means reflecting on the passage we read and think about it to derive practical applications in our life. परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, इसका मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा उसके बारे में हम बार बार विचार करते हैं, ताकि हमारे जीवन में हम किस प्रकार उसको व्यवहारिक तौर से लागू कर सकते हैं, उसको हम सोचें। Meditation on the scripture means we are using our mind, which God has given us, and a heart to seek to get a message from the scripture we read in our life situations. परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अर्थ ये है कि जो मन और जो हृदय परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन की परिस्थितियों में हम एक संदेश को पा सके। So, in that way, this scripture meditation or reflecting on the scriptures can even happen when we are engaged in other activities. और इस वजह से परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना या उस पर मनन करना ये तब भी संभव है जब हम बाकी कामों में व्यस्त होते हैं। What I mean is, we need not leave everything, go somewhere remote place alone. Then only we can meditate the scriptures. Nothing like that. मेरा मतलब ये है कि हमें सब कुछ छोड़कर कहीं अकेले में जाकर परमेश्वर के वचन पर मनन करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। So I think we all should have a habit of reading the Bible daily. और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सबों के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि हम बाइबल को हर दिन पढ़ते हैं, Even if we don't feel like reading. यद्यपि कभी-कभी हमें उसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती। Sometimes no, we don't miss the brushing our teeth. We just say that I don't feel like brushing today. क्योंकि कई बार हम कोई अपना दांत ब्रश करना इसलिए इस वजह से नहीं करते कि
आज मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए मैंने ब्रश नहीं किया। or we don't miss our breakfast, thinking that I'm not in a mood to eat breakfast today. या हम सुबह का नाश्ता नहीं चूकते इस ये सोचकर कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं नाश्ता नहीं करूँगा। Yeah, we know that whether I like it or no, the food is necessary nutrition, and I should not miss it. क्योंकि हम जानते हैं कि यद्यपि मेरा मन हो या ना हो, खाना खाना आवश्यक बात है और मुझे उसे टालना नहीं है। So sometimes our feelings, etc., could be different. That is fine, but still we should read God's word because that is our spiritual nutrition. और कभी-कभी हमारी जो भावनाएँ होती हैं, वो अलग हो सकती है, वो ठीक है, पर उसके बावजूद हमें परमेश्वर को वचन को पढ़ना है, क्योंकि उसी से हमारा पोषण होता है। It is quite possible even when we are reading, we did not understand or we did not figure out any meaning at the time of reading, but later it can be beneficial. ये बिल्कुल संभव है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हमें उसका अर्थ भी नहीं समझ आता और हमें उसमें से कुछ प्राप्त भी नहीं होता, पर बाद में उसका बहुत लाभ हो सकता है। So before reading the scripture, before starting reading the Bible, it's good to pray silently, make a silent prayer in your heart. Lord, illuminate my heart, give me revelation and understanding about your word, your और thoughts. और इसलिए बाइबल पढ़ना शुरू करने के पहले हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरी आत्मिक आँखों को तो खोल, मुझे तो ज्योति दे ताकि मैं तेरे समझ को, तेरे विचारों को समझ पाऊँ। Because it is only Holy Spirit is who can give us light. Because Holy Spirit is the best teacher. क्योंकि वो सिर्फ़ पवित्र आत्मा ही है, जो हमें पवित्र शास्त्र पर ज्योति दे सकता है, क्योंकि वो सबसे अच्छा शिक्षक है। Jesus told that the Holy Spirit will remind us all that Jesus spoke. यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा हमें उन सारे बातों का स्मरण दिलाएगा, जो यीशु ने कहा। So reading the scripture, even if when we are not finding interest in it, is still it is important. इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, तब भी जब हमें उसको पढ़ने में दिलचस्पी या रुचि नहीं है, वो तभी ज़रूरी है। It is good to read the Bible very slowly. और परमेश्वर का वचन बहुत ही धीरे से और धीमे से पढ़ना एक अच्छी बात है। Just like we enjoy a meal, chew and slowly enjoy a meal, something like that. Slowly, so that we can grasp and we can receive light. जिस प्रकार से हम खाने का आनंद लेते हैं, धीरे-धीरे खाकर, चबाकर, उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को धीरे पढ़कर उससे ज्योति पा सकते हैं। So I want to share four little points, not any rule or anything, which has helped me, which while reading, either consciously, unconsciously, this may be helpful. और इसलिए मैं 4 बातों को बाँटना चाहता हूँ, जो मैं इसको कोई नियम करके नहीं कह रहा, पर जो हमें बहुत उपयोगी ठहर सकते हैं, भले ही हम इसको चेतन अवस्था में करते हैं या अचेत रीति से हम करते होंगे। We can look for these four things as we read the Bible. जब हम बाइबल को पढ़ें, तो हम इन 4 बातों को ध्यान में रख सकते हैं। One is there any commandment from God for me? पहला तो क्या इस वचन में कोई आज्ञा है परमेश्वर से मेरे लिए? It could be like when I read one day, the scripture may be Philippians 4, husbands love your wife. और ऐसा हो सकता है कि एक दिन मैं वचन पढ़ रहा हूँ और मेरे लिए उस दिन आज्ञा हो कि पतियों अपने पत्नी पर प्रेम करो। So that's a commandment. I can understand. It can illuminate my heart and make me aware and motivate me to love my wife. और ये एक आज्ञा है, ये मेरे जीवन में, मेरे मन में ज्योति दे सकता है, मुझे प्रेरणा दे सकता है ताकि मैं अपने पत्नी पर प्रेम करूँ। So as reading silently, we can see, is there any commandment for me through this passage I'm reading? और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या इसमें कोई आज्ञा है जिसको मुझे मानना है? Second thing is there a direction for me to receive in my current situation? और दूसरा तो ये है, मेरी जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें कोई निर्देश प्रभु मुझे दे रहा है क्या? I may be looking for a guidance in my life. मैं शायद अपने जीवन में कोई मार्गदर्शन चाहता हूँ। One of the way God can guide us is through the scriptures. और एक तरीका जिससे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, वो है उसका वचन।
so relevant and directly applicable for the situation where I am in. और ये बहुत ज़्यादा लागू होता है हम जिस परिस्थिति में हैं उसके लिए। And when I read that passage and reflect and think about, I get a direction in to make the right decisions in my life. और जब मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, उस पर मनन करता हूँ, तो मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलता है। The third thing is there any comfort for me in any turmoil that I face now? तीसरी बात ये है, किसी भी कठिन परिस्थिति से अगर मैं होकर आज गुज़र रहा हूँ, तो क्या परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति में मुझे कोई सांत्वना दे रहा है? See, one purpose of God's commandment, God gave the scripture is we can receive comfort in our turmoil. और परमेश्वर का वचन उसने हमें क्यों दिया, उसका एक उद्देश्य ये है, ताकि हमारे जीवन में जब कोई तूफ़ान आता है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, उसमें हम सांत्वन प्राप्त करें। So if any struggles are going on in life, any confusion going on in life, Lord God can comfort us, give us a sense of security and comfort. और इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है, कोई गड़बड़ी चल रही है, तो परमेश्वर का वचन हमें एक सांत्वना दे सकता है, एक सुरक्षा दे सकता है, शांति दे सकता है। It may be we realize a purpose in God allowing such a situation in our life. और शायद बाइबल पढ़ते-पढ़ते हम उस उद्देश्य को समझ सकेंगे, क्यों परमेश्वर ने उस तूफ़ान को हमारे जीवन में आने की अनुमति दी। So we should never miss that comfort of the scriptures in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से आने वाला जो सांत्वना है, उसको हमें कभी भी चूकना नहीं है उससे। And the fourth thing, scripture reading can help us in find answers some of our questions and doubts and that clarification that we need, which we are looking for. और चौथा तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो कोई हमारा कोई शंका होती है, कोई संदेह हो सकता है, कोई प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर हमें मिल सकता है। So uh, even after finishing the reading, we can continue to reflect on the passage we have read. और इसलिए एक बार हमारा पढ़कर हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद भी हम ये जारी रख सकते हैं कि हम उसके बारे में विचार करें और सोचते रहें। And even when you are working in the kitchen or in office, occasionally we can try to recollect and think about the passage we read maybe in the morning. और यद्यपि हम किचन में काम कर रहे हैं या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ काम कर रहे हैं, हम बीच-बीच में सोचकर याद कर सकते हैं कि सुबह हमने क्या पढ़ा था। I mentioned in the beginning, some we should read the scripture slowly. और मैंने शुरुआत में कहा कि हमें परमेश्वर का वचन धीरे से और धीमे से पढ़ना है। So it is not the quantity which matters, it's the quality, what we receive which matters. और हम कितना पढ़ते हैं, ये कितनी मात्रा में पढ़ते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम किस प्रकार से उसको पढ़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। So sometimes it can happen, a small passage we read one day, we feel that we did not finish receiving all the benefit out of it. So we can again, next day also, we can go back to the same passage. और कई बार ऐसे हो सकता है कि एक दिन हमने कोई छोटा जो भाग पढ़ा था, उसमें से हमें पढ़ते-पढ़ते उसका मनन करते-करते पूरा फ़ायदा नहीं हुआ ऐसे हमें लगता है, इसलिए अगले दिन हम उसको वापस पढ़ सकते हैं। Personally, I like to start the day with reading the Bible for some time. और वैयक्तिक तौर पर मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं हर दिन की शुरुआत बाइबल पढ़ने से करूँ थोड़े समय के लिए। And I believe and I encourage others also to encourage them, if possible, to start the day with the scripture, some time for the scripture reading and meditation. और इसलिए मैं दूसरों को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि अगर संभव हो तो सुबह का अपना दिन की शुरुआत बाइबल पढ़ने से और उस पर सोच मनन करने से हम शुरू करें। So very often it is so helpful if we start the day with some light and illumination from God's word, that is really helpful for us for the rest of the day. और कई बार ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ठहरता है, अगर हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से हमें अगर कुछ ज्योति मिलती है, तो पूरे दिन भर हमें उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। So may God help all of us increasingly find God's word like a honey and the drippings from the honeycomb. और परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में परमेश्वर के वचन को शहद के समान और टपकते हुए शहद के समान मीठा जानें।
Amen. आमीन।